All right, well, thank you again for the opportunity to share from God's word this morning. शिविर unmute your mobile, unmute. आज के सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए ऐसा एक मौका मिला है, इसके लिए मैं धन्यवादी हूं। I was actually, as I was listening to the songs in Hindi, I was reminded of the stories back in the Old Testament where there was a time when all of mankind spoke one language. और जैसे कि हिंदी भाषा में आप लोग गाना गा रहे थे, उस गाना को सुनते हुए मुझे एक बात को स्मरण आई कि ऐसा समय था सबके सब लोग एक ही भाषा में बातें करते थे। I've always wondered why God allowed so many different languages in the world where different groups aren't able to understand each other. और मैं इस बात को नहीं जानता कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा बहुत सारे भाषाओं को हमारे जो है बीच में लाया और सब लोग अलग-अलग भाषा को बोल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। We find in the story that in Genesis chapter 11 that God actually confused the languages, one to protect mankind from conspiring against God. और इस बात को हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक उसके 11वां अध्याय से हम लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं लोगों का जो भाषा को द्वंद्वित कर दिया था, उन लोगों को जो है बहुत सारे भाषा बोलने के लिए उनको प्रतीत किया था ताकि वे लोग परमेश्वर का विरुद्धाचरण ना करें। Now we find that not only was it to protect man from conspiring against God, it was also to protect man from hurting each other. और उतना ही नहीं कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से या फिर परमेश्वर का विरुद्ध जाने से रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि मनुष्य एक दूसरे के लिए जो षड्यंत्र रचते हैं उससे भी बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे भाषाओं को उनके बीच में लाए थे। What we find is that as the Lord Jesus Christ redeems, one day we will be standing before the King of Kings and Lord of Lords, where there will be thousands of languages that praise him. And I believe we will also understand each other as we praise him in different languages. ऐसा एक समय आने वाला है, हमारा जो उद्धारकर्ता के पास हम सब के सब जब चले जाएंगे, ऐसा एक वक्त आएगा, ऐसा एक समय आएगी, हम सब लोग अनेक भाषा में परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे और वो सब के सब भाषा आप और मैं समझ पाएंगे। And that day, I hope to hear some of you sing songs and I can actually understand it. But in the meantime, I enjoy the music. I love music. And so I enjoy hearing other people sing with passion under the Lord. और जैसे कि अभी मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन ऐसा एक समय आएगा, उस दिन में आप सभी लोगों का भाषा को मैं समझ पाऊंगा। और जो है मुझे तो बहुत म्यूजिक पसंद है, मैं बहुत उसमें आनंदित लेता हूँ। आप जब गाना गाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। The other thing that limits us in today's time period with different languages is communicating the knowledge of God from God's word. I'm really glad for our brother Sabir and other Ranjit who's able to translate from English to Hindi, but that is a limitation that takes place when there is different languages. और हम लोग इस बात को देखते हैं, एक और समस्या है कि भाषाओं के बीच में जो है एक दूसरे को समझना नामुमकिन जैसा है। लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि जो है एक भाषा दूसरे भाषा से अनुवाद करके उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, फिर भी देखिए कितना अंतर आता है। Now, the reason why this becomes important is because as believers, as Christians in the Lord Jesus Christ, one of our responsibilities is to know God's word and be able to explain that to other people. और जो है देखिए फिर भी जो है उसमें बहुत सारे परेशानियां आती है, लेकिन ये भाषा जानने से भी जो है हमें परमेश्वर का वचन को गहराई से जानना
और उस भाषा को दूसरों के सामने उस परमेश्वर का वचन को दूसरों के सामने व्याख्या करना जरूरी है। So we will find in Malachi chapter 2 and verse 7, and I have it on the screen if you're able to see it, that the lips of the priest should keep knowledge. और हम लोग जो है मलाकी का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 7वां आयत में इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस तरीके से लिखा गया, क्योंकि याजक जो कोई चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। Now, this is a responsibility for each and every single person who is on this video call. If you have trusted in the Lord Jesus Christ and have believed in him, you are to be a witness for Jesus Christ. That means you have to know God's word and be able to explain that to other people. और जो है अभी जो जितने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, आप लोग परमेश्वर को जो है अपना उद्धारकर्ता के रूप में जो विश्वास किए हैं, आपके और मेरे हम सभी लोगों का मुंह में जो है परमेश्वर का वचन को होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन को जानना और दूसरों को यही वचन को बताना बहुत जरूरी है। We will find in the book of Malachi that this was a burden that God had for the people of Israel. और जब मलाकी का पुस्तक हम लोग अध्ययन करेंगे, ये ही है जो परमेश्वर के ऊपर एक बहुत बड़ी बोझ इस्राएल के प्रति थी। In our first session, we examined how God shared his love for the people and the burden that he had for them because they didn't appreciate his love. और हम लोग जो है हमारा पहला जो अध्ययन थी, पहला जो सत्र था, वहां पर हम लोगों ने इस बात को अध्ययन किया है कि परमेश्वर ने इज़राइल के प्रति उनका बोझ कैसा था और परमेश्वर का प्यार क्या थी। Now, in our last session, we examined the fact in chapter 1 that not only did the people they despise God's love, they actually despised God himself and his law that he provided. और हम लोग देखते हैं कि पहला अध्याय में इस बात को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि इज़राइल के लोग परमेश्वर को तिरस्कार ही नहीं किया, बल्कि जो परमेश्वर का प्रेम और जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी उन्होंने तिरस्कार किया है। Now you'll notice that we only discussed a little bit of it last time. We only covered chapter 1. We noticed the fact that they despise God's authority as father and master. They also despise God's altar, which was a table of the Lord, and the sacrifices. और जो है हम लोग ज्यादा विस्तार से पिछले जो है सत्र में देख नहीं पाए थे। इस बात को हम लोगों ने अध्ययन किया है कि वे लोग परमेश्वर का अधिकार का जो है अवमानन किया है। वे लोग परमेश्वर का उस वेदी थी, उस वेदी का भी उन्होंने अवमानना किया है। And we'll find in chapter 2 and verse 1 through 9 the rest of the burden that God had for the children of Israel, in that they despised his law, or more specifically, they didn't really appreciate God's word. और हम लोग जो है इस बात को अध्ययन करते हैं दूसरा अध्याय पहला पद से 9वां पद में। वहां पर हम लोग देखते हैं वे लोग परमेश्वर का उस अधिकार और उस वेदी को ही अवमानना नहीं, बल्कि परमेश्वर का व्यवस्था को भी उन्होंने अवमानना किया है। Now, when we come to chapter 2, the first verse in chapter 2, we find God saying, "Now, O priests, this commandment is for you." और अभी देखिए जब दूसरा अध्याय का पहला पद में परमेश्वर उन याजकों को इस तरीके से कहते हैं कि और अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। Now, what we want to ask, there are two questions, and one of the questions is, what is the role of the priest? And the second question is, how does the role of the priest fit with you and I in the New Testament church? और अभी एक सवाल हमारे मन में उठता है, वो ये है कि एक याजकों का जो है उसका कार्य क्या है, वो क्या करता है। अभी दूसरी सवाल ये है कि जो है नया नियम में एक याजक होने के याजक आपके और मेरे जीवन में कैसे लागू होता है। So in chapter 1, God was talking to the people in general,
and saying that you despised my love and you despised my altar by offering bad sacrifices. But now in chapter 2, he is talking to the priests specifically. अभी हम लोग पहला अध्याय में इस बात को देखे थे कि जो है तुमने मेरा अधिकार को अवमानना किया है और फिर मेरा जो है वेदी का अवमानना किया है। किस तरीके से वेदी का ना जो है गलत बलिदान चढ़ा करके तुम मेरा वेदी का अवमानना किया है और मेरा अधिकार को भी तुमने जो है अवमानना किया है। कैसा? ना मेरी आज्ञाओं को तुम पालन नहीं किया है। अभी दूसरा अध्याय में देखते हैं उन याजकों को जो है परमेश्वर वास्तविक रूप में कुछ बातों को बताते हैं। Now, to understand this, we have to first answer the first question, and that is, what is the role of the priest? और ये सब सवालों का जवाब हमें पाना है तो सबसे पहले एक सवाल पूछना जरूरी है कि याजक का कार्य क्या है। Now, we find out right away in verse 1 that the role of the priest is to give glory to God's name. और हम लोग जो है इस पद को जब मलाकी उसका पहला अध्याय दूसरा पद को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एक याजक का कार्य जो है परमेश्वर को महिमा देना होता है। Notice what verse 2 in Malachi chapter 2 says is, if you will not hear and if you will not take it to heart to give glory to my name, says the Lord of hosts. और हम यदि दूसरा अध्याय का दूसरी पद को इस तरीके से पढ़ते हैं कि जगवीर, आर यू देयर? जी, यदि तुम ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। Well, here you'll notice that the priest were to take these burdens that God had shared in chapter 1 and really all of the things that God has taught in God's word and give glory to his name. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि उन याजकों को इस तरीके से शिक्षा दी गई थी। वो शिक्षा यह है कि वो याजक लोग जो है परमेश्वर का उस बोझ को अपने ऊपर लेना, परमेश्वर का बातों को जो है अपने ऊपर लेना और सुन करके अपने जीवन में लागू करना और परमेश्वर को महिमा देना उनका काम था। Now you'll notice here it says that they were to give glory to God's name by hearing God's word and applying it to their life. और किस तरीके से वे परमेश्वर को महिमा दें? कि सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन को सुनना और फिर बाद में अपने व्यवहारिक जीवन में उस वचन को लागू करके परमेश्वर को महिमा देना उनका कार्य था। God even says that he will send a curse because they don't take it to heart. परमेश्वर इस बात को भी कहते हैं, वो वचन को यदि वे लोग दिल के अंदर नहीं लेते हैं तो परमेश्वर उनके लिए श्राप भेजेगा। Now you'll notice, and if you remember from chapter 1, their love for God is based on their heart. और हम लोग आप लोगों ने देखा होगा कि पहला अध्याय में उनका जो प्रेम को हम लोग देखें उनका जीवन को यदि देखें तो जो है उनका दिल के अंदर से ही वो सब कुछ थी। Secondly, their offerings and their worship is based on their heart. We find that in chapter 1. और पहला अध्याय में इस बात को भी हम लोग देखते हैं कि जब वे परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाने के लिए आए थे वो सब कुछ भी अपने दिल के अनुसार ही वे लोग करते थे। Here we find that their love for God's word, the Bible, is going to be based on their heart. और अभी हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि उनका जो वचन के प्रति सुनना या फिर वचन को जो है प्रेम करना ये भी दिल के अनुसार होना चाहिए। The priest is supposed to love God's word.
और एक याजक का कर्म होता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति उसकी प्रेम होनी चाहिए। Sometimes I believe we make God's word, the Bible, too complicated. God's Bible is very simple for everyday people like you and me. और हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि परमेश्वर का वचन को बहुत जटिल कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है बहुत साधारण है, बहुत आसान है और आपके और मेरे लिए है। During the time of Jesus Christ, the Jewish children, when they turn 5 years old, are sent to the local synagogue to study under a rabbi. और यहूदियों का समय में जब एक बच्चा 5 साल का हो जाता है, यहूदी बच्चा, तो उसको जो है आराधनालय में उस एक गुरु व शिक्षक के नीचे अध्ययन करने के लिए उसको भेजा जाता था। This is very similar to how you and I would send our children to the local school to study. और ऐसे ही है अभी वर्तमान में आप और मैं अपने बच्चों को जो हमारे स्थानीय व हमारे जगह में जहां पर आसपास में स्कूल होती है वहां भेजते हैं। This Jewish rabbi, the first thing that he would do is take honey and put it on their chalkboard. और एक यहूदी जो शिक्षक व गुरु होता था, वो क्या करता है ना, अपना जो लेखन का जो स्लेट व पट्टा होता है उसमें सबसे पहले वो क्या करेगा ना, मधु को वो ला करके उसमें लेप देगा। And they would ask the children who were 5 years old to eat that honey from the chalkboard. और उनको ये बोला जाता है कि सबसे पहले जो है उस स्लेट होती है लिखने का पट्टा, उसमें से उस हनी को खाने के लिए कहा जाता है। From that point on, they would be writing God's word on that chalkboard after they clean the honey. और फिर बाद में उसके बाद जब हनी खत्म हो जाती है, उसके पश्चात उसी दिन से वो परमेश्वर का वचन को वहां पर लिखते जाएंगे। The reason why the teacher, the rabbi, does this with the 5-year-old child is from that point on, the rabbi wants the child to understand that God's word is like tasting honey. और उसी समय से वो जो शिक्षक है व गुरु है, वो इस बात को सिखाने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है मधु से भी मीठा है। He would quote the verse in the book of Psalms where it says, "Oh, taste and see that the Lord is good." और भजन संगीता में जैसे कि लिखा गया है कि उस वचन को ला करके वो कहता है, उधर से उद्धृत करके कहता है कि तुम चख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। He would go on to share the verse in Psalms that says that your word is like honey on the honeycomb. और वहां पर इस बात को लेकर के और प्रभु का वचन को उद्धृत करता है कि तेरा वचन मधु है और मधु से भी मीठा है। The reason why he did this is from that point on, the child would see God's word as so sweet that it's so enjoyable that they would enjoy studying and learning God's word. और उसी समय से ले करके जो है इस बात को वे लोग समझ जाएंगे कि परमेश्वर का वचन कितना मीठा है, और उस प्रभु का वचन जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन को सीखना, समझना, वो जो है अध्ययन करना कितना मधुर और आनंददायक है, इस बात को वो लोग लागू रखते हैं, बात चालू रखते हैं। And this is the type of heart desire that God wants you and I to have towards God's word. और यही सोच और विचार अपने दिल से ही परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन के प्रति हमारा भी ऐसे ही लगाव हो। Malachi goes on not only to say that the priest should give glory to God's name, but also to have reverence or fear his name. और मलाकी इस बात को कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन को जो है वे लोग सुने और अपने जीवन में लागू करें, उतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रति उनका भय और जो है परमेश्वर के प्रति, उसकी नाम के प्रति एक आदर उनके जो है मन में हो, इस बात को वो चाहते हैं।
Malachi chapter 1 and verse 5 says that his covenant was with Levi, the first high priest, and that he was going to fear God. और मलाकी का पुस्तक उसका एक्चुअली नॉट 1 2 वर्स 5 है। Right, 2 verse 5. और दूसरा अध्याय 5वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। So when you think about what Malachi was teaching, we see the fact that he wanted the people, or God wanted the priest to have fear and reverence for God. और हम लोग इस बात को समझते हैं कि मलाकी जो है उन लोगों को ये बताना चाहते थे कि परमेश्वर का वचन के प्रति जो है एक भय और उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक आदर हो। The third thing that we see Malachi saying in chapter 2 and verse 6 was the priest is supposed to keep and show justice. और तीसरा विषय ये है कि एक याजक को क्या करना चाहिए, ना परमेश्वर का वचन को अपना मन में रखते हुए जो है सभी लोगों को साथ जो है न्याय करना चाहिए, बराबर तरीके से सभी को एक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है करके बताते हैं। Let's read Malachi chapter 2 and verse 6. आइए दूसरा अध्याय का 6वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सदाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को बादल से लौटा ले आया था। So the priest is supposed to give glory to God. और हम लोग देखा कि सबसे पहले एक याजक जो है परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। They were to fear God and have reverence for his name. और उनको जो है परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परमेश्वर का नाम को आदर देनी चाहिए। They were to keep and show justice. और उनको जो है परमेश्वर का वचन को अपने मुंह में कंठस्थ करके रखना और उसके साथ साथ दूसरों के साथ जो है सभी लोगों को समानता के रूप में न्याय करना चाहिए। And then in chapter 2 and verse 7 we find that they were to be the messenger of the Lord of hosts. और याजक लोग जो है क्या है ना परमेश्वर का एक संदेश वाहक होना जरूरी है। Their lips are supposed to keep knowledge, and it says the people should seek the law from his mouth. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि याजक लोग जो है अपना होठों में ही उस ज्ञान की बातों को जो है रखें व रक्षा करें और उनका मुंह से जो है लोग उनका मुंह से जो है व्यवस्था को पूछें। Let's read Malachi chapter 2 and verse 7. आइए दूसरा अध्याय का उसका 7वीं आयत को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। So here we see so far the reason or the role of the priest in the nation of Israel. और अभी तक हम लोगों ने जो है इज़राइल का जो एक याजक है उस याजक का कार्य क्या है इस विषय को अभी हम लोगों ने देखा है। But notice what God says of the people of or the priest in verse 8 and 9. और आप देखिए कि परमेश्वर का लोगों को 8वां और 9वां पद में परमेश्वर क्या कहते हैं। You'll notice it says that you have departed from the way, you have caused many to stumble at the law, and you have corrupted the covenant of Levi. जगवीर, लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है,
क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। And it actually tells that they didn't show any justice either because they showed partiality in the law. और वे लोग जो है सभी लोगों को बराबर तरीके से उन्होंने न्याय नहीं किया, बल्कि परमेश्वर का व्यवस्था को लेकर के मुंह देख करके उन्होंने पक्षपात किया है। So when the people came to the priest, they didn't trust the priest. और जो कोई लोग जो है याजक के पास आते थे, वे लोग याजक के ऊपर उनकी भरोसा टूट गई थी, भरोसा नहीं करते थे। They were starting to become integrated with the politics of the land. और वे लोग क्या किया है ना, उस देश की वो जो राजनीति है, उस राजनीति में वे लोग घुल मिल गए हैं। This was a starting point that God warned the people about, because when you come to the New Testament, we see the Pharisees, we see the Sadducees, and all the corruption that existed with the priesthood. और फिर बाद में हम जो है धीरे धीरे इस तरीके से ही शुरू हुआ, और फिर बाद में नया नियम में जब हम लोग आते हैं तो सादुसीस, फारसीस और बहुत कुछ ऐसे जो है शास्त्री हैं, वो सब कुछ हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर का वचन को किस तरीके से वे लोगों ने जो है नष्ट किया है। Remember, God came to the priest and warned them with the burden that he had, that they weren't holding true to the role of the priest. And later on, 400 years later, it was so corrupt that it was a priesthood who took Jesus Christ and brought them to the Roman government to be crucified. आप देखिए जो है उन याजकों को ही परमेश्वर का वचन जो है दिया गया था, परमेश्वर के जीवन में जो है एक बहुत बड़ी बोझ थी, इसीलिए प्रभु व परमेश्वर जा करके उन याजकों को उस व्यवस्था को जो है देते हैं, उनको चिताते हैं। और ये लोगों ने क्या किया है ना, उस परमेश्वर का वचन को नहीं माना। जब नया नियम में हम लोग आते हैं, परमेश्वर का वचन इन्होंने पूरा के पूरा भ्रष्ट कर दिया था, और यही याजक लोग ही प्रभु को व यीशु मसीह को लेकर के रोमी सरकार के सामने क्रूसार्पण करने के लिए हस्तांतर कर दिए। The priests were to represent the people before God and God before the people, and they stopped doing that by despising God's law. और आप देखिए याजक का कर्म ये थी कि सबसे पहले जो है परमेश्वर की वाणी को सुन करके लोगों को देना, लोगों का वाणी को सुन करके परमेश्वर को देना, लेकिन उन्होंने क्या किया है न, परमेश्वर का वचन को उन्होंने तिरस्कार और तुच्छ जाना है। Now, we can talk about the priest in the Old Testament, but how does this apply to you and me in the New Testament church? और जो है हम लोग ऐसे ही याजकों के समाज के विषय में पुराना नियम से बहुत कुछ ऐसी बातों को हम कर सकते हैं, लेकिन नया नियम में आप और मैं देखें तो आप और मैं एक याजक होने के नाते वो सब कुछ वचन आपके और मेरे जीवन में कैसा लागू होती है। So the question we have to answer is, who are, if any, are the priests in the New Testament church? और यदि कोई है तो नया नियम में याजक लोग कौन है? Now, if you turn to 1 Peter chapter 2 and verse 4 and 5, we read a very interesting statement where it says, coming unto Jesus as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you who are believers also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. जगवीर जी सर। Okay. Yeah. 2 verse 4 to 5। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। So you'll notice in this verse,
it says that a believer is a spiritual house or a temple and a holy priesthood. और इस वचन को आप लोग यदि गौर करेंगे तो हमें यह दिखाई देता है कि विश्वासी लोग जो है परमेश्वर के लिए एक आत्मिक घर है और उसके साथ साथ पवित्र याजकों का समाज है। They were to offer up spiritual sacrifices that is acceptable to God. और जो है उन याजकों को क्या करना है ना परमेश्वर के लिए जो ग्रहण योग्य है ऐसे आत्मिक बलिदान वो चढ़ाना है। Let's consider the spiritual house, and we find this in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, where we read the fact that your body is a temple of the Holy Spirit. In other words, it is a temple in which God resides. और हम लोग जब पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 और 20वां पद को पढ़ते हैं वहां पर जो है ऐसा लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। In the Old Testament, the temple was supposed to be a place in which God dwelt and God's name was glorified in how the temple functioned. और हम लोग पुराने नियम को जब हम अध्ययन करते हैं व देखते हैं वहां पर जो मंदिर थी वो मंदिर एक जगह थी, उस जगह में जो है परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसित हो और उस तरीके से जो मंदिर में जैसे कार्य चलता है उसी तरीके से परमेश्वर का महिमा किया जाए। Here it tells us that you as a believer, your heart, your body is to be a temple, just like the Old Testament, in which God's name can be glorified. और अभी हम नया नियम में यदि देखें तो हमारा शरीर ही पुराने नियम के जैसा ही एक मंदिर है और इस शरीर से इस मंदिर से परमेश्वर के नाम की महिमा होना जरूरी है। It would mean God's name is at stake based on how you behave and what you do. और उसका मतलब क्या है ना परमेश्वर का वचन को तुम कैसे लेते हो और आप अपने जीवन व्यवहारिक जीवन में उसको कैसे लागू करते हो उसके ऊपर जो है निर्भरशील है। Now, as a temple and also as a holy priesthood, we are to represent God to the people and the people to God. और जैसे कि हम परमेश्वर का मंदिर होने के नाते और याजकों का समाज होने के नाते आपको और मुझे जो है परमेश्वर को इस संसार में जो है प्रदर्शित करना है, दिखाना है, प्रकट करना है और उसके साथ साथ इस संसार के लोगों को परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। I want to be careful in saying this because it is not limited to a special group of people in the church. Every believer, every person who has accepted Jesus Christ, the Bible says, is a priest. और मैं इस बात को कहने के लिए बहुत ध्यान से आप लोगों को कहता हूं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, वे सब के सब लोग जो है याजक है। Here you'll notice in 1 Peter chapter 2 and verse 9 that it says a priest is supposed to proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. और जो है हम लोग दूसरा अध्याय का 9वां पद में इस बात को देखते हैं, एक याजकों का समाज व याजक को परमेश्वर का नाम की प्रशंसा व महिमा करना चाहिए जो परमेश्वर की उस अंधकार से प्रकाश में लेकर के बुला लाया है। So when you come back to Malachi and what God was teaching about the priest, we see the fact that every aspect of what God taught in Malachi chapter 2 would apply to you and me who are believers in Jesus Christ. और जो है पुराने नियम में हम वही बात को और आते हैं, जो कुछ भी उन याजकों को परमेश्वर ने कहा था वो सब बातें आपके और मेरे जीवन के लिए भी लागू होती है।
We are to give glory to God's name by hearing God's word and applying it to our own life. और परमेश्वर को जो है हम किस तरीके से महिमा दें, परमेश्वर का वचन को सुने और उस वचन को अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में लागू करके परमेश्वर को महिमा देते हैं। We are to fear God and give reverence to his name. हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परमेश्वर के नाम की आदर करना चाहिए। We are to keep and show justice based on God's word. और जो है परमेश्वर का वचन को अपना होठों में कंठस्थ करके रखना है और उसके साथ साथ सभी लोगों के साथ जो है बराबर तरीके से न्याय करना है। We are supposed to be messengers of the Lord by keeping the law of God in our hearts, and also the people should come to us for questions and answers from God's word. और आपको और मुझे एक संदेश वाहक बन करके, परमेश्वर का संदेश वाहक बन करके हमें रहना जरूरी है। उस वचन को जो है अपना दिल में रखें और जो लोग आपको और मुझे पूछने आते हैं उन लोगों का, उनका सवालों का जवाब भी देना है। This would mean that we need to love God's word so much that we would take the time to study it and learn it and apply it into our life. उसका मतलब ये है मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन को हमें सुनना, पढ़ना, अध्ययन करना और अपने जीवन में उन वचनों को लागू करना है। I know some of you are going to Bible school, but I want to encourage you students who are in Bible school that studying God's word doesn't stop after you're done with school. और जो है जो लोग बाइबल स्कूल में अध्ययन करते हैं या फिर करके आए हैं, मैं उनके लिए जो है एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना, बाइबल स्कूल से आ गए, उसका मतलब वही समाप्त नहीं होती है। I have told some of our children at our church that if you have the opportunity to go to Bible school, go there. However, if you don't get the opportunity to go to Bible school, that doesn't stop you from studying God's word. You can read, you can understand, and ask God to show himself to you without it for your whole life. और हमारे कलिसिया में कुछ बच्चे हैं, उनसे मैं यही कहता हूं कि आपको यदि बाइबल स्कूल पढ़ने का मौका मिलती है, आप जाइए, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करिए। लेकिन यदि बाइबल स्कूल जा नहीं पाते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, आप पढ़िए, अध्ययन करिए, परमेश्वर से मांगिए कि उस वचन को परमेश्वर आपको उस वचन से प्रकाशन दे। That is a responsibility of the priest, every believer in the New Testament church. और यही जो है एक याजक का कर्तव्य होता है, नया नियम का हर एक विश्वासी याजक है और वही उसकी कर्तव्य है। So what we have considered in chapter 1 and the beginning part of chapter 2 is that Israel has denied God's love. और हम लोग जो है दूसरा अध्याय, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का हम लोग देखे हैं कि इजराइल के लोगों ने क्या किया है, न परमेश्वर का प्रेम को उन्होंने तिरस्कार किया है। Secondly, we see that Israel has despised God's law. और उन्होंने जो है परमेश्वर का उस वचन को उन्होंने तुच्छ जाना है। And secondly, or thirdly, we see the fact that Israel has despised God's priesthood and the law that God has given to the priest. और हम लोग जो है तीसरी बात को देखा कि जो है इजराइल ने उस याजकों का समाज को भी उन्होंने तुच्छ जाना है और जो व्यवस्था दी गई थी उसको भी। The question is, what is the consequence of doing all of this? और ये सब कुछ करने का परिणाम क्या है? To understand this, we are going to look at the next section of the next burden that God had for the people. और इस बात को समझने के लिए परमेश्वर का एक बोझ इजराइल के प्रति थी, उस विषय को आगे हम लोग देखने वाले हैं। Let's read Malachi chapter 2 and verse 10. आइए हम लोग जो है मलाकी का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 10वीं आयत को पढ़ लेते हैं।
क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? You'll notice in this verse what the people were doing is that they were dealing treacherously with one another by profaning the covenant of the fathers. और आप देखिए कि इस वचन को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वे लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे और जो है विश्वासघात जो है कर रहे थे, जो परमेश्वर का वाचा परमेश्वर ने उनके साथ बांधा था। I want to define the word treacherously. If you look up the word treacherously, it means to be unfaithful, to be disloyal, to be dangerously offensive towards one another. और जो है विश्वासघात का मतलब मैं यही कहना चाहता हूं, उसका जो है व्याख्या करना चाहता हूं, उसका अर्थ यह है कि अविश्वस्त तरीके से व्यवहार करना, किसी को जो है उसके प्रति समर्पित नहीं होना, बहुत क्रूरता के तरीके से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, वही होता है विश्वासघात। The second definition I want to explain is the word profane. It means to be irreverent or disrespectful, but even more, it means to be wicked against the covenant of the fathers. और यहां पर हम लोग देखते हैं निंदा करना। निंदा करने के विषय को यदि देखें तो जो है वे लोग मतलब बिल्कुल भी सम्मान ना देना और जो है अपने मन में आदर की सोच और विचार को नहीं रखना, वह दुष्टता जो है दिखाना, उस बात को निंदा करने का विषय You'll बताई notice, गई है। you'll notice a progression of wickedness that we see in the book of Malachi. और आप देखिए वहां पर जो दुष्टता कैसे धीरे धीरे बढ़ती चली गई है, मलाकी का पुस्तक में आगे आप पढ़ सकते हैं। They denied God's love. Then we see them despising God's law, and then we see them despising God's priesthood, and it leads to living a wicked, treacherous life against each other. और अब हम लोगों ने इस बात को देखे हैं कि परमेश्वर का प्रेम को उन्होंने जो है ग्रहण ना किया वो, और फिर बाद में हम लोगों ने इस बात को भी देखा कि परमेश्वर का उस जो व्यवस्था थी उसका उन्होंने अवमानना किया, परमेश्वर का उस याजकों का समाज को भी उन्होंने अवमानना किया, और फिर बाद में वही चीज क्या किया है ना, जो है वही बात ही उनको विश्वासघात तरीके से ईश्वर को निंदा करने की तरीके से उनको आगे बढ़ाया है। The question we have to answer is, how has the people dealt treacherously with others, and how has the people profaned the covenant of the fathers? और जो है वे लोग दूसरों के साथ कैसे किस तरीके से विश्वासघात तरीके से अपना जीवन को व्यतीत किया है, और उसके साथ साथ परमेश्वर का जो वाचा है उन अपने जो पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उस वाचा का उन्होंने कैसा अपमान किया है। Let's read verse 11 of chapter 2. आइए दूसरा अध्याय का 11 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहूदा ने विश्वासघात किया है और इज़राइल और यरूशलेम में घृणित काम किया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। You'll notice they did treacherously by marrying the daughters of a foreign god, it says. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं किस तरीके से उन्होंने विश्वासघात का काम किया है कि वे लोगों ने जो है विदेशी उन देवताओं के साथ जो है शादी किया है, उनका जो है पुत्रियों के साथ शादी की है। It says that they profaned the Lord's holy institution. और जो है जो पवित्र जो यरूशलेम की जो पवित्र चीजें थी वहां पर वे लोग घृणित का काम किया है, घृणा की काम की है। What is this talking about? और इसका मतलब क्या है? Let's read verse 14, 15, and 16 of chapter 2. आइए दूसरा अध्याय का 14, 15 और 16वीं आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं।
इसलिए यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। You'll notice they were profaning God's holy institution by dealing treacherously with between you and the wife of your youth. और आप देखिए किस तरीके से वे लोगों ने विश्वासघात काम किया है, और उसके साथ साथ जो है घृणित काम किया है, जो वे लोग उस जवानी स्त्री के और जो है आपके बीच में क्या किया है ना, मतभेद पैदा करके और जो है घृणित का काम करके जो है आपको जो है उसके उसी जरिए परमेश्वर के सामने वे लोग घृणित का काम किया है। He says it again in verse 15 that you should not deal treacherously with the wife of your youth. और जो है 15वीं आयत में हम लोग इस बात को अध्ययन करते हैं कि जो है तुम्हारी जो जवानी समय की उस स्त्री के साथ तुम कभी भी विश्वासघात नहीं करना, त्याग नहीं देना। They were getting a divorce basically, and God hates divorce. और अब देखिए वे लोग क्या कर रहे थे ना, वे लोग जो है त्याग पत्र दे रहे थे, और परमेश्वर ऐसे त्याग पत्र देना घृणा मन नफरत करता है। Once they got the divorce, they were getting married to other daughters of foreign gods. और वे लोग क्या कर रहे थे ना, एक बार जो है त्याग पत्र देने के बाद जो है दूसरी जो है विदेशी देवताएं हैं उनकी पुत्रियों से वे शादी करते थे। In this way, they were dealing treacherously with each other and also profaning God's covenant. और वे लोग इस तरीके से एक दूसरे को विश्वासघात का काम कर रहे थे, और उस परमेश्वर का जो वाचा थी उस वाचा के लिए वे लोग घृणित का काम कर रहे थे। The question that we have to ask is, why is marriage and family so important to God? और जो है एक सवाल हमें पूछना जरूरी है कि परमेश्वर के सामने ये विवाह और परिवार क्यों परमेश्वर के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। You'll notice in verse 14 of chapter 2 where God actually says that she is your companion and your wife by covenant. और 14वीं आयत को आप लोग यदि देखेंगे, वो तुम्हारी संगिनी है, और जो है उस तरीके से इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जीवन की संगिनी और ब्याह हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था। Now, I realize on this video call that some of you are married and some of you who are young are not married yet. और मैं अभी जो है इस वीडियो कॉल के जरिए मैं इस बात को देख सकता हूं, आप लोगों में से कुछ लोग जो है शादीशुदा हैं और कुछ लोग शादीशुदा नहीं हैं। For those of you who are not married, you might be wondering, what does this have to do with me? जो है आप लोगों में से कुछ लोग शादी नहीं किए हैं, तो आप लोग ऐसे सोचते होंगे कि अरे ये सब मेरे लिए क्या लाभ है, क्या जरूरत है। Now, I have been married for 21 years, and I can tell you how I prepared for my marriage has a big impact on how my marriage goes. और जो है अंकल अभी तक जो है शादी होकर के 21 साल हो चुका है, लेकिन शादी होने से पहले उन्होंने किस तरीके से तैयारी की थी, उस तैयारी आज तक जो है वो चल रही है। वो तैयारी की वजह से उनका शादी जीवन चल रहा है। For those of you who are thinking about marriage,
are you realizing that you are entering into a covenant with God? और जो है आप लोग इस बात को समझते हैं, जो लोग शादी करने वाले हैं, आप उस परमेश्वर के साथ जो है वाचा बांध रहे हैं। When you are married, your first responsibility is to glorify God. And in that is how you treat your wife or your husband. और आप देखिए कि जो है आप जब शादी करने जा रहे हैं, शादी करने के बाद जो है आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि परमेश्वर को महिमा दे। आप अपना पत्नी को या पति को किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उसके जरिए परमेश्वर का महिमा होती है या नहीं। Here's the reason why. In Genesis chapter 2 and verse 24, God says that the man shall leave his father and mother, and he is supposed to be joined to his wife, and they shall become one flesh. और जो है उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 24वां आयत में इस तरीके से पढ़ते हैं, इसीलिए कि मनुष्य जो है अपना माता पिता को छोड़ करके अपना पत्नी के साथ वो जुड़ जाएगा और वे एक अंग होंगे। They're supposed to be one. The husband is not greater than the wife, okay? And the wife is not supposed to have authority over the husband. They were to come together as one union. और जो है हम लोग इस बात को देखते हैं, शादी होने के पश्चात जो है पति और पत्नी एक अंग होते हैं। पति पत्नी के ऊपर नहीं होता, ना पत्नी पति के ऊपर होती है। वे दोनों के दोनों एक अंग होते हैं, मिलते हैं। For those of you who are young men, as you prepare for marriage, the hardest part of marriage is to see your wife as your equal, as your companion. और जो है जो लोग शादी नहीं किए हैं, अभी अपना शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका जो जीवन साथी को इस तरीके से आप जो है व्यवहार करें, वो आपके बराबर है। Up until now, you are your own person. You made your own decisions. You choose to go where you want to go. You do what you want to do. You don't have to ask anybody for any permission. But when you're married, you have to talk to your wife if you want a good marriage and tell her where you're going and what you're doing. That's what it means to be one flesh. और जो है शादी होने से पहले आप अपने जो है इच्छा के अनुसार जहां चाहते थे वही जाते थे, जो चाहिए वही करते थे। लेकिन शादी होने के बाद जो है आप कहीं भी जाते हैं, आपका पत्नी के साथ बात करना है, जो कुछ भी करते हैं आपका पत्नी के साथ जो है आपको चर्चा करके करना है, यदि आपका शादी यदि सचमुच में सही रीति से चलना है तो। Now, it doesn't mean that you won't have disagreements, but when you have disagreements, you reconcile, you talk to each other, you don't plan for a divorce. और जो है हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दोनों के बीच में मतभेद नहीं हो सकती है, हो सकती है, लेकिन उस मतभेद को आप सुलझा लीजिए, ना कि जो है त्याग पत्र देना है। In the United States, our marriage, within our marriages, they say more than 60% of marriages end in divorce in the United States. और यदि अमेरिका में देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है, शादी होने के बाद करीबन 60% लोग जो है त्याग पत्र देते हैं और उनका शादी को बर्बाद किए हैं। Do you know which country today has the fastest growing rate of divorce in the world? और दुनिया में कौन सी ऐसी देश है सबसे तेजी से जो है त्याग पत्र बढ़ते जा रहा है? India. India has the fastest rate. भारत में बढ़ते जा रहा है। We find this because when we start thinking about liberation, when we think about our own self and forget the companion of your youth, it's easy to say,
I don't want to deal with that person anymore and get away. और अब जो है जो परमेश्वर के साथ जो है आपका जवानी के समय जो वाचा बांधा है, उस वाचा को आप तोड़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना स्वार्थ को आप देख रहे हैं। ये व्यक्ति नहीं चाहिए, अपना स्वार्थ ही मुझे चाहिए करके जब कहते हैं, उस वाचा को आप तोड़ करके जो है त्याग पत्र देते हैं। The reason I share this is because in Malachi, that was what was happening to the people. They were getting married, and then later they were just getting a divorce and going and finding somebody else to get married, and they despised God's institution of marriage. और यही मैं कहने का मेरा अर्थ यही है, मैं क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि मलाकी का पुस्तक में भी उस समय के लोग भी यही काम को कर रहे थे ना, जो अपना जवानी का उस स्त्री को पति को जो है त्याग करके वो जिसको चाहिए है फिर बाद में वे उन लोगों के साथ शादी कर रहे थे, परमेश्वर का उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। This is a direct result of sin and the curse we find in Genesis chapter 3 and verse 16. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि यही है सबसे बड़ी पाप, और उस पाप का जो है परिणाम और श्राप को हम लोग देख सकते हैं, वो उत्पत्ति 3 अध्याय 16 पद में। As part of the curse, God told the woman, you will greatly multiply your sorrows and your conception and pain, you shall bring forth children. And that is for the women. But it says, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. आप देखिए वहां पर परमेश्वर किस तरीके से कहते हैं कि उस स्त्री से प्रभु कहते हैं, तुम बहुत जो है कष्ट, तुम्हारे जीवन में कष्ट और दुख जो है दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और तुम जो है बहुत कष्ट और दुखों के साथ बच्चों को पैदा करोगे, और तुम्हारा जो लालसा अपना पति के ऊपर होगी, और तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। This word desire is misleading because the word here really means to control your husband. और यहाँ पर जो है एक लालसा होगी, जो आशा होगी, ऐसा लिखा गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जो उसका मतलब यही है कि उसको नियंत्रण करना। Part of the curse and part of the sin that we have is women, you desire to control your husbands. And for those of you who are married, you know what that means. How many times does women try to control their husbands? और इस बात को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो डिजायर है व लालसा है, वो लालसा का अर्थ जो है उसको नियंत्रण करना। और पत्नी, आप जो जितने लोग आप लोग शादी किए हैं, इस बात को तो आपको पता है कि पत्नी किस तरीके से आपको नियंत्रण करने का प्रयास करती है व आपके ऊपर अधिकार जो है जताने का प्रयास करती है। Men, you also have a problem in the curse and sin, because here when it says that he shall rule over the woman, it literally means to crush or to suppress the woman. How many times do you men who are married, either in anger or something, desire to crush or to suppress the women, your wife? और यहाँ पर इस पद को हम लोग पढ़ते हैं कि जो है, और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रभुता करना, बस शासन करना, उसका मतलब क्या है ना, उसको दबाना, उसको जो है मसलना। आप लोग कितने बार अपना पत्नी से जो है वही सोच रखते हैं, उसको दबाने का, उसको जो है कुचलने का, इस तरीके से प्रयास आप लोग करते हैं। This is the curse. This is the sin that we live in, that God wants us to go against and glorify him and realize that your wife is a companion, one in the flesh, together in covenant with God. और इसीलिए ये सब कुछ को त्याग करके इसका विरोध जाना है और परमेश्वर का हमें महिमा करना है, जो परमेश्वर ने जो है आपके लिए जो जीवन साथी बनाया है, उस साथी को लेकर के आप महत्व दे करके परमेश्वर का महिमा करना। So
marriage is important to God because he instituted it for his glory and our blessing so that we will do this in union as one flesh. और परमेश्वर ने शादी इसीलिए रचा है कि जो है परमेश्वर को हम महिमा दे और परमेश्वर का महिमा देते हुए हम भी आशीष पाए और उसके साथ क्या है ना ऐसे ही पति और पत्नी एक साथ हो करके एक मन हो करके अपना जीवन को व्यतीत करें. A second reason God gives for marriage being so important is because he seeks godly children, and you need a healthy marriage for godly children. और दूसरा कारण परमेश्वर जो है शादी को महत्व देते हैं इसीलिए कि जो है शादी यदि अच्छा होगा वो रिश्ता यदि अच्छी होगी तो जो है बहुत प्रभु भय मानने वाले बच्चे उत्पन्न होंगे. Now, another reason God desires an important marriage and family is because God hates divorce under any circumstances. God hates divorce. और जो है एक और कारण ये है कि जो है पवित्र व प्रभु में मानने वाले बच्चे हमारे परिवार में पैदा हो और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर त्याग देना नफरत करते हैं. Under circumstances, we know from the New Testament and also in the Old Testament, God may allow divorce, but that doesn't necessarily mean that he likes it. Here, he's very clear in verse 16 that says he hates divorce. और आप देखिए कि जो है नया नियम में और बहुत सारे अध्याय के अनुसार हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो है जो लोग त्याग पत्र देना चाहते हैं ऐसे लोगों को प्रभु अलाउ कर देता है, अनुमति तो दे देता है. लेकिन यदि हम 16 पद में देखें तो परमेश्वर जो है ऐसे त्याग पत्र देना नफरत करता है, घृणा करता है. So we see that marriage and family is important to God. And so we have to ask the question, what does this have to do with my relationship to God? और जो है हाँ इस बात को हम लोग देखा कि परमेश्वर जो है एक परिवार को महत्व देता है और जो है परिवार को महत्व देता है लेकिन मेरे साथ जो है परमेश्वर का रिश्ता को लेकर के ये शादी ब्याह क्या उसके साथ क्या संबंध है. So we see in Malachi that the people denied God's love, the people despise God's law, the people despise God's priesthood, and now they disregarded God's union of marriage. और आप देखिए लोगों ने क्या किया है ना परमेश्वर का उस प्रेम को उन्होंने त्यागा है और परमेश्वर का उस व्यवस्था को उन्होंने तुच्छ जाना है. परमेश्वर का उस याजकों का जो समाज थी उसको भी उन्होंने तुच्छ जाना है. अभी परमेश्वर ने जो शादी की वाचा को बांधा है उस वाचा को भी उन्होंने तुच्छ जाना है. Now we see the result of this in verse 12 where it says, if we disregard the marriage in our family life, it says that God does not accept our offering of worship accept our offering of worship. और यदि हम इस परमेश्वर का उस वाचा को यदि हम लोग तुच्छ जानेंगे, परमेश्वर का व्यवस्था को तुच्छ जानेंगे तो आप और मैं जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं उस बलिदान को कभी भी वो ग्रहण नहीं करेगा. In verse 13 it says that if we cry out to God, he is not really looking in goodwill. It says that we go to the altar with tears and weeping and crying. He does not regard the offering anymore, nor receive it with goodwill from your hands. और अब देखिए 13 पद को हम लोग इस बात को पढ़ते हैं. हम जो है परमेश्वर के सन्मुख तो जो है रो करके गिड़गिड़ा करके आंसुओं के साथ हम जाते तो हैं लेकिन परमेश्वर आपकी उस बलिदान को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेगा. The third thing I want you to consider is found in 1 Peter chapter 3 and verse 7. And I would say this, if you are in conflict with your wife, God doesn't hear your prayers.
और मैं तीसरी बात आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि आपका और आपके पत्नी के बीच में यदि जो है झगड़ा है, लड़ाई है, पट नहीं रहा है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। Read First Peter chapter 3 and verse 7. वैसे आइए ही हम लोग पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 7वां पद को पढ़ लेते हैं। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। So you'll notice that if my marriage is in conflict and I am not honoring God in it, God doesn't accept my worship, my cry for help, or my prayers. और यदि हम शादी को महत्व नहीं देते हैं, तो परमेश्वर आपकी आराधना को स्वीकारेगा नहीं। आपकी जो है क्रंदन है, गिड़गिड़ाहट है, उसको भी जो है सुन करके वो आपको मदद नहीं करेगा, ना ही आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा। This is very serious. This is not me speaking. This is God's word telling you what his burdens are regarding your marriage. मेरे प्यारो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, आपका शादी को लेकर के परमेश्वर कितना गंभीर है। God takes marriage and family life very seriously, and the people of Israel have disregarded marriage, and thus God has rejected their offering of worship and prayer. और आप देखिए परमेश्वर जो है शादी को कितना गंभीर तरीके से लेते हैं, और जो इज़राइल ने क्या किया है, उस शादी को उन्होंने तिरस्कार किया है, उसको तुच्छ जाना है। इसीलिए परमेश्वर उनकी आराधना को, ना ही उनका प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। So far, the book of Malachi has been a book of warnings, and sometimes it's negative in the first 2 chapters. और जो है हम लोगों ने पहला और दूसरा अध्याय को हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का उस चेतावनी को देखा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे ही नकारात्मक बातों को हम लोग पहले और दूसरे आयत को हम लोग पढ़ करके देखे हैं। From the first day on, I have asked us to consider, do I love God? Do I accept his love? जो है पहला दिन से मैंने यही पूछा है, क्या हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं? क्या हम उस परमेश्वर का प्रेम को आप और मैं ग्रहण करते हैं? Secondly, we find that, am I despising God's law? In other words, am I doing how God wants me to worship him with his authority and his altar? और दूसरी बात को जो है हम लोगों ने देखा है कि क्या हम परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानते हैं? परमेश्वर का जो अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार क्या हम परमेश्वर का आराधना करते हैं? We also see the fact that they despised God's priesthood. और हम लोग इस बात को भी हम लोगों ने देखा था कि वे लोग परमेश्वर का उस याजक का समाज को भी तुच्छ जाना है। And thirdly, we looked at this morning that they were despising God's institution of marriage. और हम लोग जो है तीसरी तरीके से इस बात को हम लोगों ने देखा है कि इज़राइल ने उस जो है परमेश्वर ने जो ब्याह का वाचा को उन्होंने बांधा था, उस वाचा को भी उन्होंने तुच्छ जाना है। These are warnings and burdens that God is speaking to you and I even today, so that we can give him honor and give him glory in the way we live and how we worship him. और जो है परमेश्वर आज भी ऐसे ही चितौनियों को देता है, ऐसे ही जो है चेतावनी को देता है, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर को जो है आराधना करें, प्रेम करें, शादी को महत्व दें। Next session, we will look at chapter 3 mainly, starting in chapter 2, verse 17, and we will try to cover how have we wearied God and how have we robbed God. And so I encourage you to read chapter 3 of Malachi for next time.
और जो है आने वाला सत्र में हम लोग जो है दूसरा अध्याय 17 पद से लेकर के तीसरा अध्याय को अध्ययन करेंगे और वहां पर हम लोग इस विषय को देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर को लूटा है, परमेश्वर को जो है धन को चोरी की है। I want to give a fair warning. Since this is a Bible school, in our last session, which would be a week from now, we will have a quiz, a little test. We'll give you the questions from the book of Malachi, and we would expect you to give some answers back just to see how much we've learned together. और जो है आने वाला जो क्लास होगी वो क्या है, उसमें एक छोटी सी प्रश्न उत्तर का समय होगा, एक छोटी सी क्विज होगी कि पिछले जो सत्र था वो उन सत्रों में हम लोग कैसे परमेश्वर का वचन को अध्ययन किया है। सवाल होंगे, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। If you need to go back and re-watch the YouTube videos, feel free. This will be an open book test. It's not going to be hidden questions. And so, fair warning, you had at least 1 week to prepare for this. Read up the book of Malachi, and we will enjoy and learn from God's word and continue to grow closer to Him. और ये बाइबल स्कूल है, आप जानते हैं कि आपका मन को यदि ताजा करना है तो आप जाइए YouTube वीडियो में, आप देखिए और फिर समझने के लिए प्रयास करिए। So I want to thank you again and for the opportunity